So let us, good evening students. आज जो मेरा लेक्चर था, जैसे मैंने आपको कल बताया था दैट हम बहुत ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस के, बिकॉज वी आर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस. जो फर्स्ट लेक्चर था न्यूमेरिकल्स का, आई हैव जस्ट स्टार्ट द बेसिक, और उसमें दैट आई हैव टेकन द क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस के ऊपर और डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द लोडिंग के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स आपको स्टार्टिंग में दिए थे. जो आज का लेक्चर है, यू कैन से दैट द प्रॉब्लम्स विच वी आर टेकिंग हियर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड यू कैन से जहाँ से यू विल गेट द कंसेप्ट of all the problems. Concepts are very good one, and these problems you can say they are very important regarding the examinations of GATE, UPSC and other professional examinations. So I will say that right from the beginning to the end of this lecture, we will take up very important and very conceptual problems. So you must, you can say that watch the complete lecture right from the beginning to the end, right? So my first problem is today, which I have taken. This is very important, and इसमें एक very important concept is there that we have to just understand what is in that problem. In a laboratory test, first, you read the problem, you understand the problem, what is given here, why these things are given, how we can utilize them, and then we will get the solution of that problem. In a laboratory test of a beam loaded by end couples, right? Loaded by end couples, the fibers of the layer AB as shown in the figure are found to increase by 60 into 10 to the minus 3 mm, whereas that of CD decreased by 100 into 10 to the minus 3 mm in the 200 mm gas length. Using E is this much, and determine the flexural stresses in top fiber in MPa. प्रॉब्लम क्या है? बीम है, एंड इन द लेबोरेटरी टेस्ट, हम उस बीम का लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं, राइट? इन द लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ द बीम, और बीम का जो एंड है उसके ऊपर क्या है? कपल्स है. यू अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द बीम it is loaded by the end couples. The fibers of the layer AB, they have given us the two layers. This is the layer AB and this is the layer CD. Yeah, right? The layer AB, that is, you can say, increased by 60 into 10 raised to power minus 3 mm. Layer AB जो है वो कितना इंक्रीज होती है? 60 into 10 raised to power 3 mm. Whereas the layer CD, this is the second layer CD, that is decreased by 100 into 10 raised to minus 3 mm. And the gas length, जो स्पेसिमेन की लेंथ है जो दिया है हमें, जिस स्पेसिमेन के ऊपर हम ये लेबोरेटरी टेस्टिंग कर रहे हैं, the gas length, this is equal to 200 mm. Length is given, you can say that is this layer is increased by this much. How much? This layer is increased by 60 into 10 to the minus 3 mm, and this layer that is decreased by this much of amount. You understand? E की वैल्यू दिया है, तो हमें स्ट्रेस कहाँ पे फाइंड आउट करना है? At the top fiber. At this fiber we have to find out the stress, right? तो ये आपका प्रॉब्लम था. अब देखिए, first the things are given to you, what you have to find out. पहले हमें क्या दिया गया है, हम जहां पे लिख लेते हैं, जो गिवन आपका है राइट साइड के ऊपर लिख लेते हैं इसको. हमें चेंज इन लेंथ
in AB. जो लेयर AB है इसमें चेंज इन लेंथ कितना दिया है? दैट इज 60 into 10⁻³ mm and that is increase, right? दूसरा चेंज इन लेंथ CD कितना है? दिस इज 100 into 10⁻³ mm. ये आपका डिक्रीज है, राइट? एंड गैस लेंथ भी आपको दिया है, लेंथ दिस इज 200 mm. So these three things are given to you. You understand? So these are given to you, right? Value of E that is also given, हम लिख लेंगे यहाँ पे. E that is given as 70 GPa and we have to find sigma on the top layer. On the top layer सिग्मा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है टॉप लेयर के, राइट? सो दीज थिंग्स आर गिवन इन द प्रॉब्लम एंड वी हैव टू फाइंड आउट. तो अब इसको मिटा देते हैं हम. So this is the problem which is given to you. This is the specimen of the beam, and at this beam you can say the end couples are applied there. When we will apply the end couples here, what happens? They have given the two layers, that is AB one layer and CD the second layer. He says that the layer AB that is increased by 60 into 10⁻³ mm and the layer CD that is decreased by this much. गैस लेंथ दिया है, E की वैल्यू दिया है और सिग्मा हमें कहां पे फाइंड आउट करना है? दैट इज ऑन द टॉप लेयर. नाउ यस अंडरस्टैंड, दिस इज गिवन, प्रॉब्लम इज देयर. अगर इफ यू विल सी द प्रॉब्लम, यू विल सी हियर दैट लेंथ AB is increased by this, right? By 60 into 10⁻³ mm और जहां पे लेंथ जो CD है डिक्रीज दिया है. इसका मतलब है कि दैट वी कैन ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन एट AB and we will find the equation of the strain at CD. Why we will find the equation of the strain? Because by using the Hooke's law we can get the equation of the stress. You understand that? तो जो क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, because they have given that this layer is increased by this much and this layer is increased by that much, sorry, decreased by that much. So it means there, अगर जहां से हम क्वेश्चन को देखेंगे तो जहां से आपको फर्स्ट जो आपको क्लू मिलेगा वो क्या मिलेगा कि ये जो चेंज इन लेंथ दिया है और ओरिजिनल लेंथ भी हमारे पास है, वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन ऑफ AB एंड CD. और जो जैसे आपको assumptions में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ता है so that we can understand that how the things are deforming there. Or then from the equation of the strain by using the Hooke's law we can derive the equation of the stress. You understand that? So jahan se the first clue we have got that equation, we will find the equation of the strain of AB and CD. But the problem is we are not having the value of न्यूट्रल एक्सिस. हमें ये मालूम नहीं है कि वेयर इज द न्यूट्रल एक्सिस, बिकॉज इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रॉब्लम फर्स्ट वी मस्ट नो दैट वेयर इज द न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस इसके सेंटर में भी हो सकता है और न्यूट्रल एक्सिस जो है सेंटर में नहीं भी हो सकता है. यू नो दैट. तो इसलिए हमें फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, सबसे पहले बिफोर फॉरगेटिंग ईच एंड एवरीथिंग वी मस्ट फाइंड आउट द न्यूट्रल एक्सिस. आपको समझ आ गया?
जो हमारा सबसे पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू नहीं दिया है कि न्यूट्रल एक्सिस कितने डिस्टेंस के ऊपर है, कहां पे है, वेयर इज द न्यूट्रल एक्सिस, वी डोंट नो दैट। और जब तक न्यूट्रल एक्सिस नहीं आपको मालूम होगा, हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस टॉप लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। जहां से तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, y इज व्हाट, y इज द डिस्टेंस जहां से हमें लेना है स्ट्रेस, जिस पॉइंट के ऊपर निकालना है, फ्रॉम दैट पॉइंट टू द न्यूट्रल एक्सिस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड y। तो इसका मतलब यह है कि हमें तो टॉप लेयर के ऊपर व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेस ऑन द टॉप लेयर। व्हाट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट हैविंग द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, that where the neutral axis lies, right? Sorry. So where the neutral axis lies, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will find the neutral, पहले हमें ये न्यूट्रल एक्सिस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे एप्सिलॉन ए बी। एप्सिलॉन ए बी मीन्स इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन एट ए बी। जो हमारी ए बी लेयर है वो क्या है, जैसे आपको पता है, दैट इज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, राइट। अब चेंज इन लेंथ क्या है, व्हाट इज योर चेंज इन लेंथ, दिस इज 60 into 10 raised to power minus 3, and what is your original length, this is 200, right। तो ये आपका सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं हम, राइट। तो ये आपका आएगा 3 into 10 raised to power 4 mm, यू अंडरस्टैंड। तो पहला चेंज इन लेंथ आपका आ गया 3 into 10 raised to power minus, sorry, change in equation of the strain epsilon AB, this is 3 into 10 raised to power minus 4 mm। इसी तरीके से आप एप्सिलॉन CD निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन एट द पॉइंट CD, सेम चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो जहां पे चेंज इन लेंथ क्या थी 100, 10 raised to power minus 3, राइट, 200, and this is equal to, this is your 10 raised to power minus 3, not sorry, and this is equal to 5 into 10 raised to power minus 4 mm। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन की वैल्यू आ गई, यू अंडरस्टैंड दैट। हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन क्या हो गया, एप्सिलॉन ए बी, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, और जे इसकी जो डायरेक्शन होगी दिस इज नेगेटिव, माइनस होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, यू अंडरस्टैंड दैट। एप्सिलॉन सी डी दैट इज -5 इंटू 10⁻⁴ mm मीन्स इसकी डायरेक्शन वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, दैट विल गो लाइक दिस एंड इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव, यू अंडरस्टैंड। अब जहां पे मैं आई विल ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन हम ये जहां पे ड्रा कर लेते हैं, गिवन को मिटा देंगे, हमें नहीं चाहिए, यू अंडरस्टैंड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन हम करेंगे, यू अंडरस्टैंड। तो
जहां पे यस सो ये जहां पे था, तो ये पॉइंट आप जहां से ले लीजिए, राइट, जहां पे, एंड दिस इज हाउ मच, ये आपका आ गया कि ये आपका आ गया 3 इंटू 10⁻⁻⁴ mm, यू अंडरस्टैंड। और दूसरा कितना है, -5, मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है, दिस ये क्या है, अपोजिट है, और ये कहां पे है, ये सांस 75 mm के ऊपर है, ये 75 mm, इसको मिटा दीजिए, ये 75 mm के ऊपर है, तो आप कह सकते हैं ये आपकी, यू अंडरस्टैंड, इसको कम कर लीजिए थोड़ा, ये 3 है, ये समझ आ गया आपको। दिस इज 3 × 10⁻⁴ mm, दिस आई हैव टेकन, दिस इज द पॉजिटिव, ये साइड के ऊपर, और ये अपोजिट डायरेक्शन, और एंड यू नो दैट इन द स्टेन्स दे आर बेयरिंग लीनियरली, तो क्या होगा, इसको हम मिला दीजिए अब, राइट। तो ये आपका पॉइंट आ गया न्यूट्रल एक्सिस। अब ये कितना डिस्टेंस है, जहां पे ये पॉइंट था आपका ए, ये पॉइंट क्या था ए, ये पॉइंट आपका आ गया ओ, यू अंडरस्टैंड, ए ओ, और ये जो ऊपर पॉइंट था, जहां से लेके जहां तक कितना था, ये आपका है 30 mm, एंड जो जहां से लेके जहां तक कितना था, जहां से लेके जहां तक जो पॉइंट था, दिस इज 120, ये कितना है, ये 120 mm है, ये जो डिस्टेंस है, और जो जो जहां पे जो नीचे वाला है, दिस डिस्टेंस इज 75, यही है ना, दिस इज द डिस्टेंस। जो CD लेयर है वो इस पॉइंट के ऊपर है, और ये डिस्टेंस कितना था, इसको ऐसे नीचे लिख लो, दिस इज 75 mm, एंड DAB का डिस्टेंस 120, एंड दिस इज 30। तो ये आपका आ गया, जहां से लेके ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट आप D कर लीजिए, राइट, OA, ये पॉइंट B, एंड दिस इज पॉइंट C। तो ये आपकी आ गई इसकी स्ट्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेन, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेन की आ गई, ये 3 × 10⁻⁴ है, और ये सपोज ये कितना है आपका, ये 5 × 10⁻⁴ mm, यू अंडरस्टैंड दैट, ये कितना है 5 × 10⁻⁴, एंड दिस इज 3 × 10⁻⁴ mm, जहां तक ठीक है। नाउ ये हमने स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो थी, वो हमने स्ट्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है जहां पे आपको करके बता दी, यू अंडरस्टैंड दैट। अगर जहां पे करना है सेपरेट अच्छे तरीके से करना, तो जहां पर भी कर सकते हैं, सपोज करो ये कर लीजिए, जहां पे ये आपका पॉइंट A है, दिस पॉइंट इज सपोज A, एंड ये जहां पे पॉइंट आपका कितना है D है, इसको इधर लिख लीजिए, ये पॉइंट कितना है D है, एंड
ये नीचे वाला पॉइंट है। तो इनके आपको पता है ये जहाँ से लेके जहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 30 mm, राइट। ये डिस्टेंस आपका 120 mm, राइट। और ये जो आपका डिस्टेंस है जहाँ से जहाँ तक, दिस इज योर 75 mm, यही है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन मैंने ड्रा किया, जे इधर आ गया ए बी, राइट, दिस पॉइंट इज बी, और इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻4 mm, और ये जो लेयर थी सी डी, राइट, ये आ गई 5 इंटू 10⁻⁴। अब मिला दीजिए आप इसे थोड़ा कम कर दीजिए, बिकॉज दिस इज 3 है तो ये कम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको, बिकॉज राइट, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन आ गई। यू अंडरस्टैंड। अब हमें ये आपका सपोज दिस पॉइंट इज न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये पॉइंट आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो इस डायग्राम को देख के हमें क्या ड्रा करना है, हमें तो इसका आप नेमिंग कर लीजिए। दिस इज ए बी ओ, ये पॉइंट ओ ले लीजिए, और ये डी था आपका तो ये आप सी ले लीजिए, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट सेकंड स्टेप जो हमारा है, सेकंड स्टेप, इसमें क्या करना है हमें, सेकंड स्टेप वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यू अंडरस्टैंड। लेट मैं कहता हूं कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, बिकॉज न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो आपकी स्ट्रेस और स्ट्रेन होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। यू अंडरस्टैंड। सपोज दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस एट द पॉइंट ओ, लेट आई से दैट डिस्टेंस, लेट ए ओ इज इक्वल टू बाई, ए ओ कितना है, बाई है। यू अंडरस्टैंड दैट। अगर ए ओ बाई है तो ओ डी कितना हो जाएगा आपका, अगर जहां से लेके जहां तक, देखिए यहां से लेके ए से लेके डी तक आपका है 120 mm, जहां से लेके जहां तक मैंने कह दिया कितना है, बाई है, तो ओ डी आपका कितना रहेगा, ओ डी दिस इज इक्वल टू 120 माइनस बाई। समझ आ गया ये दिस पॉइंट, यू अंडरस्टैंड। इफ दिस डिस्टेंस ए ओ is by total from A to D, this is 120, so this OD is equal to 120 minus Y, right? Now geometry में आ जाइए, by using the similar triangles, by using the similar triangles, कौन सी, O A B and OCD and OCD, ये सिमिलर ट्राइंगल आप यूज कर लें, राइट। तो सिमिलर ट्राइंगल यूज करने से ये जहां पे है मैं लिख सकता हूं आपको बाई अपान, ये कितना है 3 इंटू 10⁻⁴, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज ओडी। अब ये ट्राइंगल लेनी है आपने ओडीसी, ये था बाई अपान दिस, दिस अपान दिस, राइट, दिस इज अ सिमिलर ट्राइंगल। तो इसमें ओडी कितना है, दिस इज 120 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁴। यू अंडरस्टैंड। इसमें आप बाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, हाउ मच बाई इज हियर, बाई कितना आएगा, दिस इज 5y। अगर आपने ऐसे तो सीधे कैलकुलेटर से करें, सो बाई इज हाउ मच,
5y minus 3y. So y is equal to 45. Y is equal to 45 from AB. From AB. सीधा है, this is 5y and this 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, 360 minus 3y, ये इधर ले जाओ, 8y, this is equal to 360. 8y, this is equal to 360. Therefore, y is equal to 45 mm from AB. तो y की वैल्यू हमें मिल गई कि y जो है वो जहां से लेके जहां तक कितना है 45 mm. यू अंडरस्टैंड? तो y हमने फाइंड आउट कर लिया। न्यूट्रल एक्सिस भी हमें मालूम हो गया कि न्यूट्रल एक्सिस कहां पे है, एट द डिस्टेंस 45 mm फ्रॉम दिस पॉइंट, इससे हमारा डिस्टेंस इतना है। तो जहां पे अब आ जाइए, अब हमने निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। इसको मिटा देते हैं, ऑलरेडी इज देयर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट स्ट्रेस एट द टॉप लेयर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस एट द टॉप लेयर। अब मुझे बताइए, टेल मी वन थिंग, अगर मुझे स्ट्रेस एट द टॉप लेयर वी हैव टू फाइंड आउट, इट मीन्स दैट वी मस्ट नो द इक्वेशन ऑफ द टॉप लेयर। हमें टॉप लेयर की जो इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, हमें मालूम होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? तो मैं टॉप लेयर की जो इक्वेशन है, देखिए ये आपका टॉप लेयर है, दिस इज योर टॉप लेयर। ये आपकी स्ट्रेन होगी टॉप लेयर में, एप्सिलॉन टॉप, राइट। और इसको मिटा देते हैं। तो इसी तरीके से जो टॉप बॉटम लेयर होगी, ये टॉप बॉटम लेयर है, ये आपकी स्ट्रेन होगी, राइट। आप इनको मिला दीजिए, राइट, लाइक दिस। राइट। अब ये ट्राइंगल आप, ये सपोज मैं ये कहता हूं एल के, और ये वाली जो बड़ी ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल ओ एम पी। यू अंडरस्टैंड? अब हमें ये फाइंड आउट करना है एप्सिलॉन इन द टॉप लेयर। एप्सिलॉन कहां पे टॉप करना है, एप्सिलॉन इन द टॉप लेयर। यू अंडरस्टैंड? तो आप ये फिर ट्राइंगल्स फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल ले लीजिए, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि हमें एप्सिलॉन टॉप लेयर के ऊपर फाइंड आउट करना है, तो हमें एप्सिलॉन टॉप की वैल्यू चाहिए। तो जो एप्सिलॉन टॉप की वैल्यू होगी हमारी, राइट, हमें एप्सिलॉन टॉप की वैल्यू चाहिए। तो ये कर लीजिए, फ्रॉम ट्राइंगल
OLK from सिमिलर ट्राइंगल कौन सी है, OLK, ये बड़ी वाली ट्राइंगल, एंड OAB एंड ट्राइंगल OB, जी राइट। बड़ी ट्राइंगल में क्या आएगा, एप्सिलॉन टॉप अपॉन, क्योंकि हमें एप्सिलॉन टॉप निकालना है, ऊपर निकाल लेंगे। अब मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा। देखिए जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना है, 30 mm। अंडरस्टैंड दिस, फ्रॉम टॉप टू दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम। ये कितना है, 30 mm। और जो आपका फ्रॉम O से जे डिस्टेंस है, O A जो डिस्टेंस है y जो हमने निकाला है, ये कितना है, 40 mm, क्योंकि A से जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है कितना है, वो 45 mm। तो इसलिए ये 45 mm प्लस 30 mm कितना हो जाएगा, 75 mm। तो मैं ऐसे लिखता हूं उसको, 45 प्लस 30, ये वाला दिस पोर्शन, ये बड़ी ट्राइंगल मैंने लिया है LK, दिस इज एप्सिलॉन टॉप, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज हाउ मच, OA 45, OA कितना है 45, एंड दिस AL दैट इज 30। तो ये हो गया 45 प्लस 30, दिस इज इक्वल टू, आप दूसरा ले लीजिए जे वाला, OAB, जे वाली ट्राइंगल लिया सिमिलर ट्राइंगल। AB कितना था, ये AB आपका था 3 इंटू 10⁻⁻⁴, यही था। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁴, ये था एप्सिलॉन AB, एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, OA कितना था इसमें, इस ट्राइंगल में, ये डिस्टेंस लेंगे ना OA, ये हो गया AB 3 इंटू 10, एंड दिस डिस्टेंस दैट इज 45, राइट। तो जहां से आप एप्सिलॉन टॉप की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। सो फ्रॉम हियर यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टॉप। तो देयरफॉर, तो हमारे पास एप्सिलॉन टॉप की भी वैल्यू आ गई। एप्सिलॉन टॉप दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴, इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, राइट। दिस इज 5 इंटू 10⁻⁴ mm। तो ये जो आपका एप्सिलॉन टॉप था, ये वाला फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ mm। समझ आ गया? नाउ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्या किया? Again, I will repeat, very important concepts are there. The question which is given as beam at its ends, couple is applied, and they have given the two layers. In the given, they have given two layers AB and CD. In the problem, it is there that when the couple is applied, the fiber of this layer AB, that is increased by this much of amount, and the fiber of the layer CD, that is decreased that much of the amount that is given in the problem. You understand? So from here you understand, आपको जो क्लू मिला वो क्या था कि हमें चेंज इन लेंथ, और इसकी गैस की जो स्पेसिमन है उसकी लेंथ भी उसने दिया था 200 mm, लाइक दिस। तो जहां से हमें, बिकॉज हमें वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस एट द टॉप लेयर। तो इसमें दो पॉइंट थे जो कि आपको समझने थे, अंडरस्टैंड करने थे। एक तो आपको ये देने का इंक्रीज इतना लेयर हुआ, डिक्रीज इतना लेयर हुआ, जहां से हमें जो क्लू मिला वो क्या था कि हमें जहां से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन्स जो है फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन को स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा कर देंगे वहां पे, राइट। बट द प्रॉब्लम इज कि जब भी आपने बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है किसी भी लेयर के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो न्यूट्रल एक्सिस से बाई की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। यू मस्ट नो दैट। तो इसका मतलब था कि हमें न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करना है, दैट वेयर इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो पहले हमने क्या किया, एप्सिलॉन AB निकाल लिया, एप्सिलॉन CD निकाल लिया, एंड देन स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन किया। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद
we will get the strain like this because it is linearly distributing. जो इसकी वेरिएशन है वो क्या होगी, लीनियर ही होगी. तो जहां से we got the two similar triangles and by using the concept of the similar triangles we got the value of y. हमने न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू we have calculated. You understand? This is the second step. Now y मिल गया हमें. अब now the third point is that we have to calculate the epsilon stress at the top of this beam. तो स्ट्रेस टॉप के ऊपर निकालने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन एट द टॉप. हमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन टॉप के ऊपर फाइंड आउट करना है. तो ये भी आपका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसमें आपने इस तरीके से ड्रा किया, राइट. अज्यूम किया कि मेरी इस तरीके से होगी एंड देन लीनियरली वी हैव इसको वी हैव कंप्लीटेड दिस डायग्राम. यू अंडरस्टैंड? अगेन वी हैव यूज्ड द सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि ज्योमेट्री का जहां पे बड़ा इस्तेमाल होगा. वी हैव यूज्ड द सिमिलर ट्राइंगल्स एंड विद द हेल्प ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टॉप. अब देखिए एप्सिलॉन टॉप आपके पास आ गया है. यू अंडरस्टैंड दैट? तो सिग्मा हमारा क्या होगा, सिग्मा टॉप क्या होगा, सिग्मा टॉप बाय यूजिंग द हुक्स लॉ सिग्मा टॉप क्या होगा, that is E into epsilon top. You understand? This is your sigma top, E into epsilon top, right? तो E की वैल्यू हमें दिया था I think 75 mm, 75 GPa. The value of E that is given as 70. So E that is given as 70, so this is equal to 70 into 5 to 10 to the minus 4. So therefore, sigma at top layer of the beam, this is equal to how much? 35 MPa. This is 35 MPa न्यूटन mm स्क्वायर, राइट. ये हो गया 350 इंटू 10 माइनस 4. तो ये आ गया 35 इंटू 10 माइनस 3, राइट. तो ये हो गया 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड? तो ये हो गया 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये आपका क्वेश्चन आ गया एप्सिलॉन टॉप. तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से ये न्यूमेरिकल इसमें जितने भी आपके कंसेप्ट थे क्लियर किया है. एंड दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू अंडरस्टैंड? दिस प्रॉब्लम इज ऑलरेडी इन द गेट एग्जामिनेशन समवेयर. आई डोंट नो द ईयर बट दैट इज इन द गेट. एंड दिस प्रॉब्लम एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल जो इंजीनियर्स हैं, जो सिविल के ट्रेड है इनका. तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है सिविल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैकेनिकल में तो इस किस्म की प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है, बट फॉर द सिविल पीपल हु आर जस्ट डूइंग दैट, सिविल में आपको चाहे वो गेट का एग्ज़ाम होगा या यूपीएससी का होगा, तो ये प्रॉब्लम दिस इज फॉर देम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये दिस इज़ द कंसेप्ट, वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम. इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी सिर्फ आपने लेक्चर को पूरा देखना है. एक से एक प्रॉब्लम वेरी कंसेप्चुअल होगी, राइट. एंड दोज प्रॉब्लम्स यू कैन से दोज प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जामिनेशन. यू अंडरस्टैंड? तो सेकंड एक द्वारा एक न्यूमेरिकल पहले लिख लेते हैं एंड देन वी कैन सॉल्व इट, राइट. So this is numerical number 2 इस लेक्चर का. This is also very conceptual numerical and very, you can say very important one for the professional examinations for the GATE, SSC or ESC. So for that examination, this is very important one, and this is also a very conceptual one. Just first we will read the statement what is given in the numerical. A thin high
स्ट्रेंथ स्टील रूलर, राइट, जिसका जंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज गिवन, दैट इज मेड ऑफ द स्टील, यू कैन से नेचुरली उसका जंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज गिवन एज 200 GPa, having thickness is given as 45 mm and length 1.2 mm. This is all the parameters of the ruler that is given, is bent by a couple. अब देखिए ये आपका रूलर है, it is just like this. इसमें उसका थिकनेस बताया है, that is the thickness is 45 mm. Say this is the length and length is 1.2 meter. So couple जो है at its ends, couple जो है इस तरीके से अप्लाई होगा तो क्या होगा, it will bend like this, like a circular arc. You understand? It will bend like a circular arc. ये bend इसका circular arc, subtending an angle of 40 degree at the center. So you can say this is the center. तो जहां पे जो एंगल है वो कितना सबटेंड करता है, दिस इज द 40 डिग्री, राइट. सो व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द रूलर? वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द रूलर. यू अंडरस्टैंड? So in order to find the bending stress, either we know the bending moment or we must know the radius of curvature. ये दो चीजें हमें चाहिए, या तो हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए या हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए. यू अंडरस्टैंड? तो दिस प्रॉब्लम एक्चुअली दिस इज यू कैन से दिस प्रॉब्लम इज ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है. Suppose if it is, I will draw like this. This is a circle. This is the circle. This is a circle like this. You understand? So you can say that from here to here, the distance वो क्या है आपका, radius of curvature. ये क्या है आपका, radius of curvature. You understand? तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, radius of curvature की प्रॉब्लम है. तो हमें इसमें जहाँ तो हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, जहाँ हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट हियर इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बिकॉज इट इज बेंट लाइक ए सर्कुलर आर्क. तो डेफिनेटली सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो आर की क्या वैल्यू है, व्हाट इज आर? यू कैन से तो हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है. यू अंडरस्टैंड दैट? तो लेंथ ऑफ द कार्ड क्या होगा, यहां पे लेंथ ऑफ द कार्ड, इस केस में जो लेंथ होगी ये कार्ड की, ये एक सर्कल का कार्ड कह सकते हैं, लेंथ ऑफ द कार्ड आर द रूलर जो भी आपको दिया है, जो हमें बेंड किया है, एल, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू द एंगल एट द सेंटर. यही होता है ना. अगर हमें एक सर्कल की किसी कार्ड की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो ये कह सकते हैं, ये रूलर का ये जो पार्ट जो मैंने ग्रीन में शो किया है, दिस इज अ सर्कल, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द सर्कल. यू अंडरस्टैंड? तो ये वैल्यू तो हमें दिया है, दिस इज इक्वल टू आर इनटू द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दैट कार्ड. तो एंगल, ये जो कार्ड है, इस सेंटर में क्या एंगल सबटेंड करता है, अल्फा, राइट. तो जहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो लेंथ आपका कितना था, लेंथ इज गिवन एज 1.2 मीटर, 1.2 मीटर. तो ये आप लिख लीजिए 1.2, दिस इज इक्वल टू आर निकालना है. एंड व्हाट इज योर अल्फा? अल्फा इज 40 डिग्री. अल्फा इज 40 डिग्री. यू अंडरस्टैंड? 1.2 इंटू आर, अल्फा इज 40 डिग्री. सो जहां पे हम डिग्री, बिकॉज द एंगल इज सिंपल, देयर इज एंगल, इट इज नॉट विद द साइन tan cos trigonometric function. If the angle is with the trigonometric function, then we can write the angle in degree. But if it is written directly, so we cannot write in degree, we must change this into radian. You understand? तो हमें क्या करना है, इसको रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि जहां पे देखिए, जहां पे साइन tan cos कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके साथ नहीं है. दिस यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड, कि अगर आपका एंगल जो है इंडिपेंडेंट होगा, इट इज नॉट विद एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस we cannot write down the angle in degree, we must
चेंज द एंगल इन रेडियंस, यू अंडरस्टैंड। तो इसको मुझे रेडियन में चेंज करना है, तो आप इसलिए लिख सकते हैं r इंटू 40 इंटू पाई अपॉन 180। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, पाई अपॉन 140 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो जहां से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, सो r दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 180, राइट, दिस इज 40 इंटू पाई। सो ये कैलकुलेट कर लीजिए हाउ मच इट हैज कम। (1.7188 meter). So this is radius of curvature. This is 1.7188 meter. You understand? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने फाइंड आउट कर लिया। ये कंसेप्ट हो गया आपको क्लियर। रूलर इन्होंने न्यूमेरिकल्स में दिया है, दैट इज बेंट लाइक ए सर्कुलर आर्क। तो ये सर्कुलर आर्क की तरह इसको बेंट किया है, तो डेफिनेटली ये आपका सर्कल होगा, एंड दिस इज द सर्कुलर पॉइंट एंड द एंगल सबटेंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज गिवन एज 40 डिग्री. So alpha angle is given 40 degree, and we have the length of the card, length of the ruler, that is also given. So you can say that this problem either you can calculate by finding the radius of curvature or finding the maximum bending moment. So ये जो problem थी that is related with the, you can say, radius of curvature. तो radius of curvature जो निकाला हमने, that you understand that how we have calculated. ये जो आपका फार्मूला है ये आप याद रखिए, लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ ए सर्कल, ये ज्योमेट्री है, लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द सर्कल, दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू द एंगल which is subtended by the circle, by the card at the center. You understand? तो L is equal to R into this, and this you have got the value of the R. तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई। Now use the equation कौन सी इक्वेशन करेंगे हम, सिग्मा अपॉन बाई दिस इज इक्वल टू E अपॉन R. यू अंडरस्टैंड? सिग्मा अपॉन बाई दिस इज इक्वल टू E अपॉन R. Or you can say, therefore, sigma maximum is equal to E into y maximum upon R. Now अब हमें y maximum फाइंड आउट करना है। y maximum कैसे होगा? y maximum देखिए, ये आपका रूलर है, इसकी थिकनेस दिया है 4.5 mm, तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा इसके सेंटर में। तो y मैक्सिमम ये आपका आ गया 4.5 अपॉन 2 फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू दिस डिस्टेंस, कितना हो जाएगा 2.25 mm.
You understand? Now put the value sigma maximum. E कितना है 200 GPa. This is mega Pascal में इसको कन्वर्ट करो into y maximum 2.25 and 1.7188 like this, right? इसको solve कर लो and you will get the value of sigma maximum. ये अब ये इसमें था मीटर में था ना, इसको भी mm में चेंज करो 10.3, right? And this you will get. So how much sigma maximum? Sigma maximum, this is equal to 261.81. So this is equal to 261.81 MPa. You understand? तो ये आपका आ गया sigma maximum. So I think this question is also clear to you. ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया. So write down one more problem. आज कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम कर लें, इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा. We have to move. अच्छा, this is another problem, that is problem number 3rd. A flat steel bar, first read the statement. A flat steel bar 25 mm wide and 6 mm thick, right? एक फ्लैट स्टील बार है, जितनी इसकी कितनी चौड़ी है ये, this is 25 mm by 6 mm and 1 meter long. Length is given as 1 meter long. Is bent by couples. ये बार है, तो ये बार इस तरीके से, इसके ऊपर इस तरीके से कपलिंग किया है उन्होंने. ये कपल इज बेंट बाय ए कपल अप्लाइड एट इट्स एंड सो दैट द मिड पॉइंट डिफ्लेक्शन, मिड पॉइंट जो डिफ्लेक्शन है दैट इज 20 mm. ये जो मिड पॉइंट इसकी डिफ्लेक्शन है, ये मिड पॉइंट की जो डिफ्लेक्शन है दिस इज 20 mm से आई विल से दिस इज डेल्टा. मिड पॉइंट की जो डिफ्लेक्शन है दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 20 mm. यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज गिवन एज दिस. मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमें बार में फाइंड आउट करना है. यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज आल्सो वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट वन. एंड दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स यू कैन से, जो आज मैं प्रॉब्लम आपको जहां पे कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग हियर, ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी कंसेप्चुअल वन. Only you must understand the concept of these problems, and these problems are likely to become in the, you can say, in your this professional examinations for GATE examination, AE, JEE, ESC, and for these examinations, such type of problems they will ask you. They will not ask you the very complicated, or you can say very lengthy problem which are given in the books. That can be asked in the university examinations, but in the professional examination, in GATE examination, ESC examination, these problems cannot be asked because there is only a calculation you can do. Calculation होती है, there is nothing else. There is you can say maximum. जैसे आप कोई प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं इसी की बेंडिंग स्ट्रेस में, तो पहले आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, डिफरेंट टाइप का लोड है उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है. So these things you can understand, read in your engineering mechanics also. ये तो वहां पर भी पढ़ सकते हैं. वो एक सिंपल कैलकुलेशन और लेंथी पार्ट होता है. बट ये जो प्रॉब्लम्स में है, दे आर हैविंग द रियल कंसेप्ट एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड द रियल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स लाइक दिस. अब देखिए, ये उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि एक फ्लैट स्टील बार है एंड एट इट एंड्स द कपल इज एक्टिंग और अप्लाइड, यू कैन से दिस विल बेंड लाइक दिस. ये इस तरीके से बेंड हुआ और मिड पॉइंट की जो डिफ्लेक्शन है दैट इज गिवन एज 20 mm. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द बेंडिंग स्ट्रेस इन द बार. तो
इसने क्वेश्चन में इसमें आंसर दिया है ए 96, तो 48, 126 और 158 लाइक दिस। अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि हमें जे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के साथ परटेन करेगी बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए, बिकॉज दिस इज इन द सर्कुलर आर्क। Either we have to calculate the radius of curvature or we have to calculate the bending moment. So this problem you can say in this problem we will calculate the radius of curvature, right? अब देखिए जैसे ये है, तो अगर मैं इसको सर्कल को कंप्लीट करता हूं जस्ट लाइक दिस, right? Suppose this is a circle, right? This is a circle. तो ये आपका सर्कल का सेंटर पॉइंट भी होगा। सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर, ओ सपोज दिस सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल इज ओ, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका राइट, तो ये आपकी ये क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ओ ए। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज ये आपका पॉइंट है बी, ये कितना है, ये बी है, ये आपका बन गया जस्ट लाइक ए राइट एंगल ट्राइंगल, यू अंडरस्टैंड। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, दिस इज मींस हमें दिस इज आर। अब ये ओ बी कितना होगा, देखिए जहां से लेके जहां तक जो है वो कितना है टोटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना आर, एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 20। सो यू कैन से ये जो वाला पॉइंट है ओ बी, दिस इज इक्वल टू आर माइनस 20, यू अंडरस्टैंड दिस। ये जो ओ बी की लेंथ होगी वो कितनी होगी, आर माइनस 20, दिस इज आर, एंड दिस length of the you can say this length of the flat plate is given, right? तो ये आपकी अगर लेंथ होगी तो मैं कह सकता हूं दिस इज l/2, l अगर लेंथ लेता हूं दिस इज l/2, यू अंडरस्टैंड। तो ये कितना होगा l/2, दिस इज एट द मिड पॉइंट, दिस इज अ सर्कल, इफ l इज द लेंथ ऑफ द स्टील बार, सो दिस पॉइंट इज l/2। अब देखिए ये हमारे पास सब कुछ है। सो जहां पे इस ट्राइंगल के ऊपर ये जो आपका ये ट्राइंगल बना, दिस इज द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, राइट। सो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम ओ ए बी, hypotenuse square r square, this is equal to under root of r square, this is equal to under root of base square plus perpendicular square, right? so ये r square है तो इसमें under root नहीं r होगा तो तब लेंगे r square is equal to base कितना है l/2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है OB, दिस इज R माइनस 20 का होल स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। R इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट, देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना आपने। R स्क्वायर दिस इज इक्वल टू L स्क्वायर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 40R प्लस 400, you understand, minus 40R plus इसको आप इसी में रहने देते, डेल्टा में रहने दो, बेटर है। ये इसकी वैल्यू इसमें ले ली, दिस ये आपका आ गया R माइनस डेल्टा, आप 40 रहने दो, दिस इज योर R माइनस डेल्टा,
इसमें रहने दीजिए, क्योंकि ये r माइनस डेल्टा में इसका मैं बनाऊंगा फार्मूला r माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। दिस इज डेल्टा, टोटल इज r एंड दिस इज r माइनस डेल्टा, यू अंडरस्टैंड। खोल लीजिए, r स्क्वायर l स्क्वायर बाई 4 प्लस मैं एक इसकी जनरल इक्वेशन बनाऊंगा कि अगर आपके पास इस तरीके से सेंटर मिड टर्म डिफ्लेक्शन आपको दिया है तो उस वक्त एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला बनता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, और वो फार्मूला आप डिफ्लेक्शन इन बीम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिड टर्म डिफ्लेक्शन दिया है एंड यू वांट टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दैट आई हैव नॉट टेकन द वैल्यू ऑफ 20 mm, जो बाद में देख लेंगे। अभी मैं ये ड्राइव कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ द मिड टर्म डिफ्लेक्शन, अगर आपकी डेल्टा दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम एंड यू वांट टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसका एक फार्मूला जहां पे ड्राइव करेंगे हम, और उसके बाद इसकी चीजें वैल्यू हम पुट कर देंगे। वो फार्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट फार्मूला यू कैन यूज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में। वेरियस क्वेश्चंस उसके रिलेटेड आएंगे जिसमें आप वो फार्मूला डायरेक्ट यूज करके आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, राइट। सो प्लस डेल्टा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 2r डेल्टा, राइट, माइनस 2r डेल्टा। देखिए ये r स्क्वायर और r स्क्वायर आपका क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर एंड r स्क्वायर दिस इज कैंसिल एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, और ये डेल्टा स्क्वायर भी आपका, देखिए डेल्टा स्क्वायर जहां पे लिखेंगे हम, डेल्टा जो है डेल्टा स्क्वायर, जो डेल्टा की वैल्यू है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी अज्यूम दैट वैल्यू इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल or very negligible as compared to the radius of curvature. Delta is very very small, right? Delta is very very small as compared to the radius of curvature. So it means अगर delta small है radius of curvature, तो delta square क्या होगा, और ज्यादा small होगा। मीन्स अगर आपका कोई वैल्यू 0.1 है और फिर ये 0.1 है तो ये तो आपका बनेगा 0.001, राइट, और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। सो इट मीन्स दैट द डेल्टा स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसको ये निग्लेजिबल, निग्लेक्ट कर देंगे, निग्लेजिबल, राइट। तो देयरफॉर आपके पास जो इक्वेशन आई ये क्या है, 2r डेल्टा, इसको इधर ले जाइए, दिस इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन 4, राइट, 2r डेल्टा, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस है ना, माइनस को आप इधर ले जाइए, 2r डेल्टा, दिस इज l स्क्वायर बाई 4, therefore r, देखिए therefore r is equal to l square upon 8 delta, r is equal to l square upon 8 delta, और j जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r is equal to l square upon 8 delta. This formula is very important one in case of the questions, you will get number of questions in the deflection of beam. जब हमारे पास they have given the mid deflection of the beam and we want to find the radius of curvature, तो radius of curvature find out करने का this is the relation, r is equal to l square upon 8 delta. This is important, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई l स्क्वायर अपॉन 8 डेल्टा, तो इसका मतलब कि हमें r अब क्या है, मिल जाएगा, तो r आप कैलकुलेट कर लीजिए, r दिस इज इक्वल टू, r कितना, व्हाट इज l, दैट इज 1 मीटर, राइट, 1 मीटर, इसको हम mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो r कितना 1 मीटर है, दिस इज 1000 स्क्वायर, 8 into 20, and you will get the value of delta. मुझे the value of delta is
sorry, value of radius of curvature is 6250. So this is 6250 sorry mm. So R की value you have calculated. Now अब यूज करें बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, राइट? नाउ यूज दिस इक्वेशन, यूज द इक्वेशन सिग्मा अपॉन बाई मैक्सिमम E upon R. You understand? Therefore, sigma maximum is equal to by maximum into E upon R, right? तो बाई मैक्सिमम कितना है? इसमें इन्होंने इसका थिकनेस दिया है. थिकनेस इज हाउ मच दे हैव गिवन? आई थिंक दे हैव गिवन द 6 mm. हाउ मच थिकनेस इज गिवन? यस, थिकनेस ऑफ दिस 6 mm है. टी की वैल्यू आपको दिया है. टी जो फ्लैट बार का 6 mm है. तो देयरफॉर बाई इज इक्वल टू 6/2. दिस इज इक्वल टू 3 mm, राइट? तो ये वैल्यू पुट कर लीजिए आप. देयरफॉर सिग्मा मैक्सिमम 3 E की वैल्यू दिया है, आई थिंक 200 GPa. हाउ मच इट इज गिवन? This is given as yes 200 GPa है, तो इसलिए आएगा 10⁻³ अपॉन, ये भी निकाला हमने 6250, राइट? तो सिग्मा मैक्सिमम आ गया. कैलकुलेट कर लें हाउ मच. $96. So sigma maximum is 96. तो जो 96 वाला है उसमें आप टिक कर लीजिए, राइट? सो दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 3.